I'm Chef Suvir Saran. With me is Chef Vardhan Marwah. For Teachers Day, the teacher and the guru, the chela, guru. You know, in the 21st century, ये महाराज है, हम लोग इनके शिष्य हैं. So we are using the best Amul product I think in the world. This is incredible chocolate. We've used the dark chocolate today, but Amul also makes an Indian chocolate entirely made of Indian cacao, Indian chocolate से बनी हुई है. Milk chocolate है, tropical orange है, and fruit and nuts है. हम लोग आज dark chocolate. We are using dark chocolate today, and what Vardhan is making for you is a bowl full. एक bowl में magic, goodness. So what we are doing is हमने Amul की fresh cream use करी है, Amul का yogurt and Amul की chocolate. और chocolate को उन्होंने कैसे ऐसे बनाया वो आप Vardhan आपको बताते हैं. Vardhan, welcome to the marathon. Tell us what you're doing. Thank you, Chef. Hello everyone, so I'm Vardhan Marwah, and today I'll be making a smoothie for you guys, and I'm not gonna add any extra sugar to it. So it's healthy bhi hai, and it's rich, full of fruits, and it's really easy to make. All you need is मैंने Amul की chocolate, dark chocolate ली है, and Amul cream, and 50-50 equal quantity. मैंने बस microwave में उनको heat करा, and I've made it like a sauce. And like a ganache, and now I've set it to now it's cool and at room temperature. And ये Amul का दही. Yeah. So इसको हमने hang कर लिया for 4 hours, so it's thick and creamy. And once we've done with the yogurt, I'll be adding the chocolate to it. And you always waste so much? No. ये डिफरेंस है घर के शेफ्स और रेस्टोरेंट शेफ्स में. ये बच्चे जो रेस्टोरेंट में पले इन लोगों को कुछ भी फूड वेस्टेज की चिंता नहीं रहती. नहीं. And I'm adding 2 frozen bananas to this, so you can just put them in the freezer overnight. क्या ये अल्लाह मियां पिघला देते हैं या कैसे बनते हैं? हाँ, तो overnight आप इसको freezer में डाल दो, and अगले दिन यूज करने से पहले half an hour पहले आप इसको बाहर निकाल दो. So you don't have to put any ice. उसमें आपको बर्फ डालने की कोई भी नीड नहीं होगी. And अब बस हम सब कुछ साथ में ब्लेंड कर देंगे तब जब तक it's a smooth consistency. एक बार इसको मिक्स करिए बीच में. थोड़ा काम ह्यूमन को भी करना पड़ता है किचन में. या आजकल के बच्चों को ये बातें नहीं याद रहती. तो आपको इसको मिक्स करना है. अगर आपको और थिक चाहिए तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, या यू कैन आल्सो मेक लाइक अ चीट डे वर्जन जिसमें आप अमूल आइस क्यूब भी डाल सकते हैं. तो एक और बारी ब्लिट्स कर दीजिए. तो ये ब्लेंडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये तो आदमी को ब्लेंड कर दे. सो बी वेरी केयरफुल. So it's a very easy and quick recipe. So now I'm just going to plate it for you guys. Here's this. And I'm bring मैं चमचे ला रहा हूँ चखने के. But what you put in this, sky is the limit. जो चीज आप डालना चाहे, जो फल सीजन में है, मैंगो आप फ्रीज करके पीसेस में काट के फ्रीजर में रख दीजिए ओवरनाइट. सुबह आपने बर्फ की तरह मैंगो को डाल दिया दही के साथ, और फिर चॉकलेट गनाश को टॉपिंग की तरह डाल दिया. एंड ये आज ड्रैगन फ्रूट आपके लिए यूज कर रहे हैं. हाँ, तो हमने ड्रैगन फ्रूट को बस स्कूप कर दिया, स्कूप आउट. तो ये ड्रैगन फ्रूट बाहर से ऐसा, अंदर इन्होंने स्कूप करा. एक स्कूप करके दिखाएं. देखिए आपको स्कूप करना आता है क्या? सर हमने बस एक स्कूपर लेके we took out a nice scoop out of it, like so you get these perfect pretty looking tiny table tennis sized balls. So मैं इसको garnish के लिए use करूँगा. और पहले कुछ और भी डाल रहे हैं?
So पहले हमारी स्मूदी इन द बोल, इसके ऊपर मैं ग्रेनोला, you can use cornflakes, आप कुछ भी healthy nuts कुछ भी यूज कर सकते हैं. So हम ग्रेनोला बार यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा क्रश कर दिया हमने, तो it's like completely healthy as well. और because हमने बनाना बनाया है, तो I'm gonna garnish it with very thin, एकदम paper thin cut bananas as well. और हम इस पे blueberries, dragon fruit, आप कोई भी fruit, अभी strawberry आ जाएगी सीजन में, then you can start using strawberries. आप इनको freezer में pop करके, you can use anything. ये blueberries डाल रहे हैं? हाँ जी. So blueberries and then dragon fruit. और फिर हमारे पास अमूल डार्क चॉकलेट है. ये कंजूस है, तो उन्होंने इतनी कम ब्लूबेरीज डाली. तो हमें सबके लिए जगह बनानी है, इसलिए कम ब्लूबेरीज. एंड फल में न्यूट्रिशन बहुत है. डेयरी में प्रोटीन आपको मिल रही है, कैल्शियम मिल रहा है, विटामिन डी, विटामिन ए, खूब सारा क्रीमी टेक्सचर एंड फ्लेवर. एंड फल आपको फाइबर दे रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं. इट्स अ बोल फुल ऑफ गुडनेस. एग्जैक्टली. अब मैंने माइक्रोप्लेन से बस थोड़ा सा अमूल का चॉकलेट जो है, मैं इसको ग्रेट कर दूंगा इस पे, just to give it a little bit more of texture and goodness of the Amul chocolate, and it's complete. And here there's the bowl. Can we both try some? Yeah, definitely. I can't wait to dip into this. Wow. Very good. कुछ तो सीखा है हमारे चेले साहब ने. Bowl full of goodness. The idea was, आज आप लोगों ने 200 प्लस लोगों से सीखा है मैराथन में कुकिंग. हम लोग उनको थैंक यू करना चाह रहे थे. वरदान और मैंने एक बहुत बढ़िया अमूल की खिदमत से ब्रेकफास्ट खाया. हम लोगों ने कॉर्न फ्रिटर्स बनाए, जिसमें अमूल की चेडर चीज हमने डाली और भुट्टा के कर्नल्स, एंड उसमें हरा प्याज और खूब सारी धनिया, उनको मिलाया और उनको फिर हमने छोटी छोटी टिक्कियां बनाई. वो हमारा ब्रेकफास्ट था. ये हमारा लंच होने वाला है. So welcome to that. But I want to thank all the chefs जिन्होंने खूब यहाँ पे मेहनत करी है. कल 2 बजे से आज अभी तक कर रहे हैं. शेफ थॉमस गूगलर, मुरली गुप्ता, सार्थक कोचर, वरिंद्र सिंह राणा, समाक्षी अग्रवाल, वंदना गुप्ता, सुमन वैश्य, मीनू विज, देवव्रत जतिगोइंकर, मिनाल मेनन, सोनल गार्गा, अक्षता शेनोय, मनीषा गुप्ता, विमल धर, अखिल कुमार, पवनदीप कौर, नेहा दीपक शाह, मधु नेहता, शारन बेदी डिसूजा, वेंकटेश शर्मा, प्रियंका बिस्वास, किरण जोशी, कविता भगनानी, दियांश भार्गव, रितेश मिश्रा, सिमरन टिन्ना, अश्विंदर कौर, ज्योति शिखा, नीलू रस्तोगी गुप्ता, रेणु जैन, स्वाति भार्गव, नीरू गोयल, आयरा भार्गवा सिंघल, मेघा झुंझुनवाला, स्मिता अहलूवालिया, भावक अग्रवाल, नीलू कोरा, सौरभ अवस्थी, अंकिता सक्सेना, भवानी स्वामीनाथन, अंजलि रामास्वामी, पूनम केडिया, निशा वर्मा, प्रकाश यादव, आशा मल्होत्रा, अपर्णा कोलारकर, स्वप्ना इंगले, and with me वरदान मारवा. इन शेफ्स ने पिछले 24 घंटे के लिए, for the last 24 hours, they've been on a marathon cooking, teaching, inspiring, and while doing so also thanking their teachers. इसका आइडिया मैराथन का था कि हम टीचर्स डे के लिए अपने टीचर्स, अपने गुरुज, अपने इंस्पिरेशन के जो लीडर्स हैं हमारे, उनको हम बाव करें, उनको थैंक यू करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, और उसके साथ साथ और ज्ञान इम्पार्ट करें कि जो हमारे के आने वाली जो जनरेशन है वो भी कुछ सीखे. तो वरदान ने कल मेरे हाथ का खाना खाया, अब अगले साल अब मेरे को खिलाएगा. तो आप लोग अपनी टीचर्स को याद रखिए, उनको सलाम दीजिए. थैंक यू टीचर्स, recognize them. Amul has been giving away every hour 60 gifts to people who've been writing messages with their teachers' names. हर घंटे 60 लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं. 1500 लोगों को मिलेंगे अवार्ड्स. चॉकलेट की बास्केट्स जो टीचरों के पास पहुंचाई जाएंगी. So what a great gift Amul has given us of recognizing teachers, recognizing their students, and encouraging the Guru Shishya Parampara, जहाँ पे एक बहुत holistic education मिलती है. Vardhan, have you learned anything this Teachers Day? Yeah, a lot. What did you learn on Teachers Day?
that okay, he's the man behind who I am today. So thanks to him, and thanks to all the teachers who have been there helping their students, because these are the teachers because of whom we dream, and they are the one who give us all the resources to achieve them as well. So thank you so much, Chef. And Vardhan, when I met you, हिंदुस्तान में there's a big problem. केक्स वगैरह में हम लोग डेयरी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? Sadly, इंडिया में नहीं करते हम. हाइड्रोजनेटेड एंड प्लांट बेस्ड फैट हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स में. बट अमूल का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. सो आई गेस पीपल विल स्टार्ट स्विचिंग टू डेयरी. सो बट शेफ वरदान, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जब मैं आया अमेरिका से 1.5 साल पहले और मैंने रेसिपीज यहाँ पे टेस्टिंग शुरू करी, मैं ऐसे महारथी शेफ्स को मिल रहा था और वो लोग जो चीजें बना रहे थे, मेरे मुंह में एक चिपचिपापन, एक टेस्ट अच्छा नहीं था जो मैंने अमेरिका में खाया नहीं था बहुत सालों में. 1993 में अमेरिका में भी वैसा केक और वैसी डिजर्ट्स मिलते थे, पर पिछले 5-6 सालों में अमेरिका में वो चीज नहीं मिल रही है. तो मैंने वरदान को बोला मेरे को क्रीम दिखाइए, और वो एक डब्बा ले आए मेरे को दिखाने के लिए. और पहली चीज जो मैंने देखी और मेरे को मन कर थप्पड़ मारूं जोर से मेरे सारे शेफ्स को किचन में, उसमें लिखा है नॉन डेयरी डेयरी. ऐसे बेवकूफों, इसमें क्या बोल लिखा है डब्बे में कि डेयरी में डेयरी ना है. ये जोक है, ये आप लोगों के अगेंस्ट एक साजिश है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, जो एक डेयरी की गुडनेस आपसे, मिल्क, दूध, क्रीम, उसकी जो मलाई, उसकी जो ब्यूटी है उसको रॉब कर रहे हैं, छीन रहे हैं आपसे. तो जब आपको कोई चीज डेयरी में दूध, घी, दही और मलाई के साथ बनानी है, प्लीज उसी को यूज करिए, सब्स्टिट्यूट्स मत यूज करिए. उनमें केमिकल लदे हुए हैं, उनमें बहुत बुरे किस्म के फैट हैं जो आपके हार्ट अटैक देंगे, आपको डायबिटीज देंगे. प्लीज जब आपको मीठी चीज खानी है, जब आपको कोई सॉस क्रीमी बनाना है, दूध, मलाई, मक्खन उनके साथ कुक करिए. Pure ingredients should win. Please don't use analogous products. They're not a good thing to do. Did you learn that, hopefully? Definitely. Are you going to use pure chocolate? Yeah, I'm using pure chocolate. Amul is getting us one of the best chocolates from the best cacao from the world is being bought by Amul. So that's an amazing initiative by them, and the chocolates are amazing. This Amul chocolate is so incredible. पूरी दुनिया में इस साइज की चॉकलेट $10, $12, $14, मतलब हुआ 1,900 रुपए से 1,500 रुपए में मिलेगी. यहाँ पे अमूल हम लोगों को तोहफा दे रही है 125 और 150 रुपए की एक ही बार. पूरी दुनिया में 1,000 से 1,500 रुपए का मिलेगा ये, क्योंकि क्वालिटी इतनी बेहतरीन है इस चॉकलेट की कि आपको हर बाइट पे जन्नत टेस्ट होएगा और आपको चॉकलेट का न्यूट्रिशन मिलेगा. So when you're eating chocolate, buy pure ingredients. Look for Amul chocolate. It's unadulterated goodness. It's good for you. It's delicious and will make all the recipes you're cooking much better. Vardhan, when you make this, what are your favorite ways of making this bowl full of goodness? I would want more and more of fruits because the healthier the better. तो आज कंजूसी क्यों करी तुमने? See, I would put a lot more fruits, and then you want to eat this more and more. ये कैमरा भी डांस कर रही है अमूल के साथ, देखिए. But the most important thing to do is to enjoy dairy and keep cooking with love and care. ये सबसे important चीज है. And please celebrate this marathon as a gift for teachers all over the world, especially in our Indian Guru Shishya परंपरा. हमारे सारे गुरुओं को हमारा बिल्कुल प्रणाम, and आप लोग अपनी टीचरों को प्रणाम दीजिए. और अमूल, आपको थैंक यू, and सारे शेफ्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है from all over the world, 200+ chefs, all their friends, their associates, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम. and आप लोग सब मिलजुल के सेलिब्रेट कीजिए. इस लॉकडाउन ने अगर हमें एक चीज सिखाई है, क्या सिखाया है बता? Yeah, I feel कि actually I feel कि हम घर रह के भी, thanks to Amul, we've learned a lot to cook, and all the home chefs have done a great job. So हम सारे chefs को थोड़ा inferiority complex हो गया है. हाँ, देखिए, इसलिए मैंने इनको स्पॉट पे डाला, चाहता था कि देखिए क्या बोलेंगे. मैंने क्या सीखा है लॉकडाउन में कि होम शेफ, घर के कुक्स, जो आदमी और औरत जो घर पे मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी रेसिपीज बना के टेबल पे ला रहे हैं अपने घर में, फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, नेबर्स के लिए, वो ही लोग अब राजा बनेंगे.
क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें बताया है कि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. When you have a community and you think about society, it's incredible. So please let the lockdown teach you that we must come together as a community to cook, to share, and to inspire. And that's also the message of Teachers' Day. Please come together as communities. Did you learn that or no? Yeah, definitely. Do you cook more at home now? Yeah, I cook more at home now. I've been delivering all over Delhi NCR. I've been baking and I've been cooking for people because the restaurants are shut. So I was like, why not use my skills to it and deliver all over Delhi? So I'm baking cakes. I'm using Amul chocolate. And it's been a wonderful time. And thanks to Amul, it's been a great initiative. He has a company called Glaze Factory, जहाँ पे ये बहुत बढ़िया केक्स वगैरह बना रहे हैं. एंड जब मैं इनको मिला तब ये कोई चॉकलेट यूज करते थे, पर अब तो आमूल ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि पता चल गया है की फॉरेन चॉकलेट हमेशा बेटर नहीं होती है. आप कई बार पैसा भी ज्यादा दे रहे हो और आपको इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है. तो आमूल बहुत प्योर है एंड आपको बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट दे रहा है. एंड हिज केक्स, हिज पेस्ट्रीज, हिज कीशेस एंड टार्ट्स मक्खन या असली यूज करते हैं, डालडा वाला यूज करते हैं. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. प्योर इंग्रेडिएंट्स कम आप यूज करेंगे, बहुत ज्यादा उसका फ्लेवर इंपैक्ट होगा. एनालॉगस फेक इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, उसमें आप डालते जाइए, आपकी नीयत कभी नहीं भरेगी, क्योंकि उसमें लजीजपन नहीं है. तो आप प्लीज प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज करिए. कुक विद आमूल, कुक विद रियल बटर, रियल मिल्क, रियल क्रीम, एंड योर लाइफ विल चेंज एंड योर टीचर्स विल थैंक यू, बिकॉज cooking is about sharing, cooking is about inspiring, cooking is about feeding the mind, body and soul. तो प्लीज खूब धीरज से और ध्यान देके करिए, आप बहुत खुशी से लोगों को खुश करेंगे. तो जरूर आप इस मैराथन से अगर इतना सीख ले, बहुत बड़ी बात होगी. एंड थैंक यू टू ऑल द शेफ्स हु जॉइंड अस. एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. एंड आमूल, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी of bringing the world of chefs together to thank our teachers across the world. Thank you. Thank you. Thank you so much, Chef. Thank you so much, Chef. I would like to add some more points to whatever you have said and your thank to all the chefs. आपने करीब 50 शेफ्स का नाम दिया है जिन्होंने कल हमारा 24 घंटे में जो सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा कि उनके साथ हर एक के साथ 3 से 4 और शेफ्स थे. तो क्लोज टू करीब 200 शेफ्स ने हमारे साथ दो दिन में हमको सपोर्ट किया है. तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल 200+ शेफ्स who have participated this show and made it successful. Another thing, sir, आपने जो बोला कि टीचर्स डे पे हम टीचर्स को ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स गुडीज भेज रहे हैं, आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे पास 500 स्टूडेंट टीचर्स के डिटेल्स आ गए हैं, जो स्टूडेंट्स ने हमारे चैट बॉक्स में डिटेल्स भेजे थे. उसमें से 500 हमारे पास टीचर्स के डिटेल्स आ गए हैं. एंड वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू गेट अनदर 500 मे बी बाय एंड ऑफ द डे, एंड वी वुड शेयर ऑल द गुडीज टू द रिस्पेक्टिव टीचर्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स. पर मेरे को तो एक भी बैग नहीं मिला. मेरे इतने स्टूडेंट्स से मेरे को कोई प्यार नहीं करता. Vardhan, please join our Facebook and put comments in our chat section, so we will be able to help chef also. No, but I want to say one more thing. There's Team Amul. जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं बचपन से मेरे को आमूल बहुत पसंद था. मेरे को गूस बम्स आ रहे ये कहते हुए, क्योंकि जब हम बच्चे थे एक ही ब्रांड था आमूल, जो हम लोग utterly delicious, and it was very special. फिर मैं अमेरिका चला गया 28 साल का, फिर वापस आया 2 साल पहले. जब आमूल ने मुझे कांटेक्ट करा, एक आपके अफसर है, नाम उनका है मनु चौधरी. जब उनका मेरे को फोन आया तो मनु जी ने बोला कि हम लोग क्वारंटीन कुकिंग क्लास कर रहे हैं. मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों तंग मुझे कर रहे हैं, पर इतने तमीजदार ये आपके एम्प्लॉय थे कि उन्होंने मेरे से तमीज से लिखा, तमीज से फोन पे बात करी. ऐसा मैं करूंगा. मुझे ये पता ही नहीं था कि जो मैं करने वाला हूँ एक मूवमेंट है. ये कुकिंग क्लास नहीं है. ये आप लोगों ने, आमूल के एम्प्लॉइज ने, आमूल के कोऑपरेटिव ने, आमूल के डेयरी फार्मर्स ने और आमूल की विजन ने एक मूवमेंट पैदा करी है जो अब रुकने नहीं वाली. अब ये मार्च चलती जाएगी और हम लोग होपफुली प्योर इंग्रेडिएंट्स को किचन्स में लाएंगे, लोगों को नई रेसिपी सिखाएंगे. उन पुरानी डिशेस की जब हम लोग भूल गए थे, डालडा और ये पाम ऑयल वगैरह डाल के हमने उनको खराब कर दिया था, हम फिर से हिंदुस्तान में लोगों को सिखाएंगे कैसा हिंदुस्तानी खाना, दुनिया का खाना लोगों को हेल्दी भी रख सकता है,
इंस्पायर भी कर सकता है और डिलीशियसनेस देगा. So I thank all the team and members at Amul for giving us this amazing inspiration during COVID and lockdown. Thank you. हम लोग quarantined और कैदी रहे पर आप लोगों ने हमें आजादी भी दी है. Thank you so much for your kind words, chef. ये सही बात आपने बताई कि एक हमने सोचा नहीं था इतना लंबा हमारा एक मूवमेंट बन जाएगा. इसमें काफी चीजें फर्स्ट टाइम हुई है. अभी तक जितने भी कुकरी शोज होते थे वो प्री रिकॉर्डेड एंड टीवी शोज होते थे. दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स लाइव लाइक ए क्रिकेट मैच जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो हमारे यहाँ पे भी शेफ्स के हाथों से गलतियां होती थी, कुछ गिर जाता था, तो दैट ऑल एवरीथिंग वाज पॉसिबल. आज ही एक शेफ वो रोल बना रहे थे, उसमें गलती हो गया, उनसे गिर गया. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी इट्स नेचुरल. तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा एंड वी गॉट लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स. फिर हमने शुरू किया कुक विद द शेफ्स. तो एक लीड शेफ बाकी शेफ्स के साथ मिलके बहुत अच्छा रेसिपीज बनाते थे. उसमें शेफ थॉमस गुगलर ने तो 50 कंट्रीज के शेफ को जुड़ा था और उन्होंने एक कॉमन इंग्रेडिएंट से डिफरेंट डिशेस, दैट ट्रेडिशनल डिशेस बनाए थे. दैट वाज आल्सो ऑसम एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड दैट. फिर 15 अगस्त को हमने एक नया मूवमेंट शुरू किया कि आप आइए हमारे साथ और एक सिंपल खाना 10 लोगों के लिए बनाइए और आपके नेबरहुड में जो भी 10 लोग नीडी हैं उनको 15 अगस्त के दिन आप खिलाइए. तो उसमें भी करीब हमारे 1000 शेफ्स थे और उन्होंने हर एक ने 10-10 लोगों का खाना बनाया. तो करीब 10,000 लोगों को उस दिन वो शेफ्स की मेहनत से उस दिन के लिए खाना पहुंचा था. तो ऐसा काफी सारी चीजें हैं सर जो हमने किए हैं और आप जैसे शेफ्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया है. तो वो एक बड़ा हमारे लिए रहा है और काफी नए लोगों के साथ हम जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि हम कंटिन्यू करेंगे ये हमारे मूवमेंट को. आपने बताया मिस्टर मनु चौधरी आपके साथ एसोसिएट हैं, वो अभी लाइन पे है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम आल्सो टू से फ्यू वर्ड्स एंड इंटरेक्ट विद यू. यस मनु, ओवर टू यू. नमस्ते मनु. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं आपका पूरा सेशन देख रहा था और डिश वाकई में बहुत टेस्टी भी और जैसा कि इसके इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं बहुत हेल्दी भी है और बहुत प्योर है. मनु, एक चीज जो आपने मुझे बोली थी कि हम आपके इंग्रेडिएंट्स को यूज करें, द ब्यूटी ऑफ दैट, ये बात हम लोगों को सबको समझानी है कि जिस चीज में कम इंग्रेडिएंट्स है उसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीशियस नहीं होती या वो बढ़िया नहीं हो सकती. इनफैक्ट अंग्रेजी में एक कहावत है, लेस इज मोर. जब कम डाला जाए और मैजिक आया करता है. तो आमूल वही हमारी किचन में लेके आते हैं आप लोग. तो यहाँ पे लग रहा है कि इजी है पर इसकी ब्यूटी यह है कि दही में परफेक्ट सावरनेस है, जो क्रीम है उसमें क्रीमीनेस एंड रिचनेस एंड मिठास है, जो आपकी चॉकलेट है उसमें कड़वाहट हल्की सी है पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रूटी नोट्स, सिट्रसी नोट्स, स्पाइसी नोट्स उन सब की आ रही है. उसमें फिर उसके साथ साथ मिठास आ रही है और फिर फलों की टेक्सचर और खुशबू और ग्रेनोला का क्रंच. तो आपको जो 56 भोग में हम चाहते हैं कि क्रंची, सॉफ्ट, च्यूई सब कुछ आपको मिल रहा है एक बोल में. आमूल के इंग्रेडिएंट्स जब प्योर होते हैं जितने हैं, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. दैट्स द आई थिंक की थिंग दैट यू हैव ब्रॉट टू इंडिया मनु इन योर कैंपेन. सो थैंक यू फॉर दिस मूवमेंट. वो कहते हैं ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल. आप लोग साबरमती के आसपास के हैं तो आप लोगों ने आमूल के प्रोडक्ट के साथ हमें एक नई कुकिंग की आजादी दी है. थैंक यू फॉर दैट. जी सर, साबरमती के बहुत पास से हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में भी थे और उनको लोग अमेरिका में जानते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी फैमिली ट्रैक्टर लेके आई थी इंडिया में. मैं फार्म पे रहता था अमेरिका में, तो वहाँ के जो जॉन डियर ट्रैक्टर वाले लोग हैं उनके ओनरशिप से मेरे को फोन आया कि आप इंडियन हैं. उनको डर था कि मैं महिंद्रा के साथ काम करूंगा क्योंकि वो आ गए थे अमेरिका में. तो उन्होंने मेरे को बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल की फैमिली ट्रैक्टर लेके आई थी हिंदुस्तान इन द 30s. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का नाम बहुत रोशन करा दुनिया भर में. तो गुजरात ने हम लोगों को इतनी बढ़िया डिलीशियस गिफ्ट दी है. मानू, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल. थैंक यू सो मच सर. सर, मैं आपसे कुछ और 2 और सवाल पूछना चाहूंगा. आपने कल एक बहुत अच्छा छोटा सा एक टॉक शो दिया जिसमें आपने गुडनेस ऑफ मिल्क के बारे में बताया, अपने टीचर्स के अच्छे मेमोरीज के बारे में बताया. एंड आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद यू फॉर क्वाइट अ व्हाइल. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ शरारती मेमोरीज भी होंगी स्कूल की जो आप छुपा गए.
मैं तो बिल्कुल दूध का धुला, भगवान का बच्चा। मेरे को तो नटखट कहना तो मेरे को कोई कहता ही नहीं था। मेरे को सब कहते थे बिल्कुल भगवान राम जी की तरह, बिल्कुल बहुत अच्छा बीबा मुंडा है, लोग कहते हैं। मे भी शायद हमको आंटी से पूछना पड़ेगा किसी से। नहीं, पर आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। कि मैं कोई आपकी कोई शरारती मेमोरीज, क्योंकि आपने कल अच्छी बहुत सारी मेमोरीज बताई, शरारती मेमोरीज भी अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ मनु, एंड अगर टाइम है, टीचर्स की खूबी के बारे में है। गुड 10 मिनट्स। तो हमारे मैं दिल्ली के एक बहुत मशहूर स्कूल में पढ़ा। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं घर पे, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, इसी घर पे मैं पैदा हुआ। और मेरे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा सोचा होगा कि मुझे मॉडर्न स्कूल भेजा। मेरे पिताजी भी उसी स्कूल में गए। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, हमारे प्रिंसिपल मेरे फादर के हिंदी टीचर आया करते थे सालों पहले। तो जब एक बारी वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, मेरे भाई और मैं दोनों और मेरी बहन तीनों उस प्ले में थे। तो उन्होंने मेरे भाई को बोला, गुरु क्या कर रहे हो तुम? तो मेरी फादर और मदर हम लोगों को पिकअप करने आए थे स्कूल में। तो उन्होंने देखा कि मेरे भाई को प्रिंसिपल डांट रहे हैं नीचे डायरेक्ट करते हुए प्ले को, और मेरे फादर का नाम गुरु सरन था। तो मेरे भाई जिसका नाम समीर है, उसको वो गुरु कह के डांट रहे थे। और मेरे फादर पे आंसू आने लगे स्टेज के नीचे बैठे बैठे ये सुन के कि 30 साल बाद उनके टीचर, जो हिंदी ड्रामा के टीचर थे, हिंदी एंड ड्रामा के, वो उनके बेटे को डांट रहे हैं प्ले की डायरेक्शन करते करते उनका नाम लेके। तो मैं ऐसे स्कूल में गया जहाँ पे टीचर्स और बच्चों का बहुत डीप कनेक्शन रहता था। मैं टीचरों का फ्रेंड होता था। हमारी टीचरों की खूबियां थी, वो बच्चों को समझती थी इस बच्चे को क्या चाहिए। मैं पहला बच्चा था मॉडर्न स्कूल की हिस्ट्री में जो 8वीं कक्षा में मील प्लानिंग की क्लासेस लेना चाहता था। तो हमारी टीचर एक मिसेस पुन्या और एक मिसेस बीना राणा हुआ करती थी मील प्लानिंग में। वो हैरान कि सारी लड़कियां लेती है क्लास, ये लड़का क्यों लेना चाहता है। कुछ नहीं उन्होंने बोला तुम क्या करोगे आप। उनको लगा कि ये लड़कियों को देखने आ रहा है, पटाने के लिए आ रहा है। तो पहले थोड़ी सी गार्डेड रही। फिर मैंने कहा, मैडम मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैं कढ़ाई कैसे करता हूँ, मैं नैपकिन कैसे फोल्ड करता हूँ, टेबल कैसे सेट करता हूँ, पराठे कैसे बनाता हूँ, तुम्हें आते? मैंने कहा कि आओ। तो उन्होंने इम्तिहान लिया मेरा और मैंने सब कुछ करा। तो मेरे को आके उन्होंने हेल्प करा और कहती तुम तो मेरी सारी स्टूडेंट से बेटर हो, आओ तुम सिखाओ भी। तो मेरे को मेरी टीचरों ने मैक्रामे सिखाना बच्चों को सिखाया। तो मैं हफ्ते में 4 बारी क्लासेस देता था पूरे बच्चों को, 12वीं कक्षा तक की, जिनको क्राफ्ट लेनी होती थी, मैक्रामे बनाना और सिखाना। तो मैं शरारती था, बहुत गलतियां करी, क्लासेस बहुत बंक करी। पर मेरी टीचर्स में एक ये खूबी थी कि उनको पता था ये बच्चा बदमाशी भी करेगा पर काम भी अलग अलग किस्म से करता है। 11वीं 12वीं में मैंने 8 सब्जेक्ट्स लिए। 11वीं कक्षा में 8 सब्जेक्ट लिए, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। उसके साथ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड हिंदी 3 और सब्जेक्ट्स ले लिए। तो 11वीं में मैं हर सब्जेक्ट को 3-4 क्लासेस हर हफ्ते बंक करता था दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। 12वीं में मेरे को लगा कि मैं हिंदी करते जाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा बंक करनी पड़ेंगी और क्लासेस। हिंदी ड्रॉप करी पर आर्ट एंड म्यूजिक रखा। मेरे को आर्ट में 100 on 100 मिले, म्यूजिक में 97 मिले, और साइंसेस में तो पता नहीं बहुत बुरा करा। बट मेरी टीचर ने कभी नहीं डांटा। वो मेरे को कहती थी तुम एक दिन बहुत बड़े बनोगे, चिंता मत करो, ग्रेड्स कम है। ये टीचर्स की खूबी थी कि उनको लगता था इसमें कुछ है। अगर ग्रेड थोड़े कम आ रहे, मेरे को डांटती नहीं थी, क्लासेस बंक करता था, डांटती नहीं थी। मैं कई बार उनको बोलता था आप ये गलत कर रही है, क्यों गलत कर, मैं उनको बताता था। मैं उनके लिए गाने गाता था, उनके लिए पोएट्री लिखता था, उनके स्टाफ रूम में बैठ के उनके साथ चूरे करता था, गॉसिप करता था। तो उन्होंने मेरे को अपना दोस्त बनाया और उन सारी टीचर्स को, उनके नाम एक की क्या लूं मैं, सब सारों के सारों ने मुझे दोस्ती दी, मुझे एजुकेशन दी, मुझे सहायता दी, मेरे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनी और मुझे सेफ्टी कोकून दिया। उन सबका मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने नॉटी हरकतें तो बहुत करी है। एक बार एक टीचर आई क्लास में, मैंने बच्चों को बोला मेरे को केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, 11वीं कक्षा में। तो मेरी क्लास में एक बालकनी हुआ करती थी, जैसे अगर ये दरवाजा है, बालकनी उस तरफ थी, क्लास इस तरफ थी। तो मैंने सारे बच्चों को बोला बालकनी के अंदर जाओ, मैम आएंगी तो बोलेगी कहाँ, मैं बोलूंगा बालकनी में कुछ देखते हैं। तो हमने सब बच्चों को वहां पे रखा, मैम भी बालकनी में आ गई, कम ऑन इन। सब बच्चे अंदर आ गए, मैंने मैम को बंद कर दिया और वो ठक्का करी क्लास को। हम लोग यहाँ पे ठक्का कर रहे, 45 मिनट की पूरी क्लास, मैम पीछे से ठक्का करी, हम अंदर से ठक्का कर रहे। हमारी क्लास खत्म हो गई, हम लोग हंसी मजाक में। मैम कहती है only one child was good, मिसेस वंदना शर्मा। सुवीर बेटा थैंक यू फॉर ट्राइंग। तो बदमाश बच्चे, और ये सब मैंने करा। आज मैं बता रहा हूँ मिसेस शर्मा को, सॉरी मैम, पर हम लोगों ने मजे बहुत करे मनु। एंड द ब्यूटी ऑफ अ गुड टीचर इज कि वो
गुस्सा भी अगर हो एक टाइम पे, दे नो गुस्सा कितना करना है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बच्चों को ग्रो करने दीजिए, और हमारी टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट करा है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय टीचर। मेरी म्यूजिक टीचर है मरीना अहमद, और वो बांग्लादेश की पैदाइशी हुई पर पंडित जसराज की चेली बनी। जब वो 17 साल की थी हिंदुस्तान उन्हें भेजा गया, क्योंकि बांग्लादेश में कोई म्यूजिक टीचर नहीं थी जो उनको सिखा पाए उस टाइम पे, तो पंडित जसराज जी ने उन्हें ले लिया। और अभी जब पंडित जी की वफात हुआ है, वो उनकी 6 टॉप स्टूडेंट्स में से थी। पंडित जी उनके घर पे न्यूयॉर्क में रहा करते थे। पंडित जी उनको वन ऑफ हिज 6 फेवरेट स्टूडेंट्स की तरह पुकारते थे। मरीना मेरी गुरु है, उनसे मैंने 27 साल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है। और मरीना कई बार मुझे डांट के कहती है, गुरु तुम हो या मैं, क्योंकि मैं मरीना तुम क्या कर रही हो, और मैं उनसे तुम कहता हूँ। तो मरीना ने मेरे को बोला, सुवीर तुम मुझे तुम बोलोगे, क्योंकि माँ और बेटे में कभी आप नहीं होता। माँ तू कैसी है। महादेवी वर्मा ने हम लोगों को एक पोयम में लिख के बताया था कि जब माँ और बच्चा माँ को तू कहता है, तब उस कनेक्शन में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वो ऑनेस्ट कनेक्शन है। तो मरीना को मैं तू कहता हूँ, मरीना तुम क्या कर रही हो। वो हमारी रिलेशनशिप इतनी प्योर है कि मरीना मुझे म्यूजिक तो सिखाती है, पर साथ साथ लाइफ और लिविंग भी सिखाती है। तो टीचर्स कम इन मेनी फॉर्म्स, इन डिफरेंट शेप्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ हमें पढ़ाती हैं, पर जिंदगी भर उनका इन्फ्लुएंस हमारे में रहता है। और वही इन्फ्लुएंस आमोल हमें टीच कर रहा है कि प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैन टेक यू टू अ हायर लेवल इन कुकिंग, कि आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ कुकिंग विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट। बिल्कुल, थैंक यू सर। आई एम श्योर वंदना जी, मरीना जी और आपके सारे टीचर्स आज आप पे नाज कर रहे होंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती।